So this is one way of addressing the challenge, that how we can make sure that our students, our people do not miss when you're talking about continuing education or when you're talking about formal education, whichever, but still do not miss any of the thing which they are supposed to learn, number one. Number two, those who are still have to be connected, we have to find ways and means to connect with them, give them facility, online facility, so that they are with us, we are together with them and don't leave them alone. Another thing, as institutions, like I see at my institution and many other institution does it, started offering short courses, that while a person sitting home don't feel that I am no more doing anything, it's just full day 24/7 I'm doing household chores. No, somebody who has been so much used to going to work every day, now almost over a month we are sitting home. So don't people don't feel that now I'm useless. So we start offering them some kind of small continuing education, so that they still feel connected, their skills and knowledge are still not rotten. We make sure that that is updated through small trainings, through online trainings, I must say that. Obviously physical training is not feasible. Yes, we are, it's not that we are not able to. If we try, we can offer some small trainings, start re-looking at our curriculum, that how we improve those curriculum, so that when those people come back to us, how best we can, because that time will be shortened. When the students will come back, that time will be shortened. We will not, for instance, if you are offering a course for 4 months, you may not be able to offer the same course for 4 months. You may have to decide that squeeze the time. So start re-looking at your curriculum, that how you can compress that, but still make sure that you give the quality education. So I think so. When when you're asking continuing education, that's very important. The challenges are there. Challenges should not stop us doing things. We as institution try and see what best we can do to keep our people engaged and prepare for the period when they return to us, so that we are able to keep them engaged at that time as well. Yeah. Raheem, so you were talking about कि innovation होनी चाहिए और नए तरीके निकालने चाहिए. But as Samina ji mentioned in the beginning also कि healthcare in Pakistan has always been एक budget issue हमेशा रहता है, resource issue हमेशा रहता है. So keeping in mind our students जो अभी आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए आपके क्या suggestions हैं, and what do you think the opportunities will be for them? जो जिन्होंने अभी शायद शुरू भी नहीं किया है अपना career, जिनके ट्रेनिंग्स अभी रुक गए हैं, जिनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो गए हैं, तो उनके लिए आपको क्या लगता है व्हाट हेल्थ याबी कैन ऑफर देम, एंड व्हाट यू थिंक उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आफ्टर वी कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक, जिसका भी कोई टाइम फ्रेम हमें नहीं पता. इट कुड बी 2 years, इट कुड बी 2 months. So what would you want to say to those students? First of all, I want to add on some points what the Samina Vartiji has said. ओके सो मैं बात कर रहा था कि 2008 में जो है वो रिसेशन आया था जब यूएस इकोनॉमी के ऊपर. तो उस वक्त बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है, आईबीएम जो सबसे बड़ी कंपनी थी दुनिया के अंदर मानी जाती है आज भी, तो बड़ा डाउनफॉल हुआ था और सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जॉबलेस हो गए थे. तो एक किताब थी जो उस वक्त लिखी गई थी, उसका नाम था हु मूव माई चीज़. उसके अंदर जो कैरेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं और उसका जो बेसिकली उस किताब के अंदर जो सबक दिया गया है वो यही दिया गया कि यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी. हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए जो है आपको सर्च में रहना चाहिए. स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं, उनके भी मशहूर जो है वो जितने भी आप उनकी कोटेशंस पढ़ लें कॉन्वोकेशंस के अंदर जो कहते हैं, या जितने भी आप बड़े बड़े बिलियनियर्स या बिजनेस ऑनर्स देख लें, या आप पाकिस्तानी अच्छे मेंटोर्स भी अगर देख लें, तो दे विल ऑलवेज से यू के डोंट बी सेटल. इंसान को जो है वो सेटलमेंट की सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए कि अगर एक काम अच्छा चल रहा है या एक जॉब अच्छी चल रही है तो 60 साल तक मैं वही काम करता रहूं. तो इस तरह जो है वो लाइफ चलती नहीं है. वक्त के हिसाब से इंसान को बिल्ड करना पड़ता है और रीबिल्ड करना पड़ता है. इसी तरह यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अनलर्न
एंड देन यू हैव टू रीलर्न। आपको सीखना है, आपको सीखने की चीज, सीखी हुई चीज को भूलना है और फिर भूली हुई चीज को दोबारा सीखना है। इसी तरह आप मूव ऑन कर सकते हैं। मैं अपनी मतलब आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, आई एम एन इंजीनियर। वो फील्ड छोड़ के आई एम रनिंग अ मेडिकल शो, आई एम इन अ मेडिकल बैकग्राउंड राइट नाउ। बट अगेन मेडिकल के अंदर जब आते हैं तो देयर आर प्रोसेसेस। कारोबार हमेशा एक प्रोसेस पे चलते हैं, एजुकेशन हो, टेक्सटाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, हर किसी में प्रोसेस होता है। तो इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के अंदर जो हमने लर्न किया वो मेडिकल के अंदर लगा रहे हैं। आज आप देखें कि अगर किसी ने अगर जो है वो काम किया है वेंटिलेटर के ऊपर, अगर काम चल रहा है कि किस तरह 4 पेशेंट्स के ऊपर जो है वो वेंटिलेशन को यूज किया जाए, तो फील्ड आपस में कनेक्टेड हैं। ये लोगों का अपना एक परसेप्शन बना हुआ है कि हमने ये पढ़ा है तो हम यही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर हम नौकरी करते हैं तो हम नौकरी ही करते रहेंगे, हम जो है ना कारोबार नहीं कर सकते हैं। कारोबारी आदमी अगर उसका कारोबार ठप हो गया है, कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार में डिक्लाइन हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि वो कारोबार के डायरेक्शन में ही हमेशा सोचते रहे। वो थोड़ा सा कोई ऐसी जॉब भी कर सकता है फ्रीलांसिंग की घर के ऊपर, जिससे उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट हो जाए। तो वन थिंग इज डेट कि हमेशा आपको वक्त के हिसाब से अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है, नई अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ता है। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, हु मूव माय चीज, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, लेकिन बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने लगे और इंश्योरेंस कंपनी में बड़ी पोजीशंस पे चले गए। कहाँ उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी और कहाँ वो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, कहाँ वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर चले गए, तो कहाँ वो अकाउंटेंसी के अंदर, फाइनेंस के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह एक तो इंसान को अपने आप को जो है ना कभी भी जमूद में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये कायनात जो बनी हुई है वो भी डायनेमिक है। पानी भी अगर जो है वो अपनी जगह पे रहता है तो उसमें भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। पानी जब बहता है तो उसके अंदर खूबसूरती आती है और वो अपने आजू बाजू जितनी भी जगहें होती है उसको ज़रखेज़ करता हुआ जाता है। तो एक इंसान की ज़ात के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इतना फ्लो होना चाहिए कि ही कैन बी मूव अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, मूव विद द फ्लो। तो आज अगर पेंडेमिक सिचुएशन है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आज के ज़माने के अंदर, आज के इन कड़े वक्तों के अंदर हम किस तरह अपनी पुरानी स्किल्स को, अपनी हैबिट्स को, इंसान की कुछ आदत होती हैं जिसके जरिए वो अपना कारोबार कर सकता है। तो आपने अगर टैफ के स्टूडेंट्स हैं, अगर खाना बनाना सीखा है तो देर आर फोरम्स ऑन फेसबुक जहाँ पर ऑनलाइन लोग जो है वो अपने खाने बनाकर तस्वीरें खींचकर उस पर डाल रहे हैं और उसके बाद उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। इफ द टैफ स्टूडेंट्स ऑफ द कस्टमर सर्विस जिन्होंने सर्विस ली है, तो वो उन बच्चों को सपोर्ट करें जो खाना पकाना जानते हैं, उनके साथ मिलकर जो है वो राइडिंग का काम करें, उनका खाना डिलीवर करके आए, कस्टमर को अच्छा शक्ल दिखाएं कि देखो हमने इन कड़े वक्तों में आपके घरों पे ये चीज़ पहुंचा दी, ये कर दिया। तो इस तरह काम कर सकते हैं एज अ टीम। हेल्थियाबी, यस वी कैन सपोर्ट यू, वी कैन सपोर्ट यू इन दैट लेवल। इसी तरह जो एक बात हम कर रहे थे कि सिचुएशन के अंदर क्या किया जाए, जिस तरह टैफ का एक और डायमेंशन है जिसके अंदर टैफ काम करता है, इट्स अबाउट हाउस कीपिंग स्टाफ। कुकिंग एंड हाउस कीपिंग है, जिसमें कुकिंग का मैंने बताया। हाउस कीपिंग की डायरेक्शंस के अंदर अगर आप देखें, कुछ इंडस्ट्रीज ओपन होंगी। आज ही मेरे पास रिसेंटली अभी गाइडलाइंस आई है, दुबई के अंदर जो है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स ओपन किए जा रहे हैं, बट विद द स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई विल शेयर यू। मैं आपको जो आपकी ईमेल एड्रेस है मैं उस पर शेयर कर दूंगा, वो गाइडलाइंस जो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा, वो आप स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। दूसरे जो हमारे जो देखने वाले लोग हैं इस कॉन्फ्रेंस को, उनसे हम शेयर कर सकते हैं। उसके अंदर वो गाइडलाइंस आप पढ़ें कि उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि नाउ देयर इज अ नीड ऑफ इवन अ हाउसकीपिंग स्टाफ को हेल्थ हाइजीन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाउसकीपिंग स्टाफ जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसको सिर्फ मॉप लगाना नहीं आना चाहिए। ही शुड नो कि मैं ये मॉप किससे लगा रहा हूँ, कौन सा डिटर्जेंट यूज कर रहा हूँ। तो दिस इज अ राइट टाइम फॉर अ मार्केटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। दिस इज अ राइट टाइम, जिन्होंने ट्रेनिंग ली वो बोल सकते हैं अपनी सीवी पे कि हम जो है वो हेल्थ हाइजीन के प्रोफेशनल्स हैं, और वो एडवांस कोर्स करें, उडेमी पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, एडवांस कोर्सेज लें, ट्रेन करें, स्किल लें। नंबर वन थिंग इज दैट। नंबर टू जो मैं बात कर रहा था कि मुझे एड ऑन करना है, जो व्हाट द समीना वर्तेजी हैज सेड कि ट्रेनिंग्स हैं जितनी भी, मैं अगेन कहूँगा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ हम इतने रिसोर्सेज लेकर, जगह को रेंट करके, मल्टीमीडिया लाकर, लोगों को गैदर कर उनके लंच का अरेंजमेंट करके इतना कॉस्टली हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अब समीना वर्तेजी सेड वेरी राइट कि कैरिकुलम के डायनेमिक्स चेंज हो गए, कैरिकुलम को हमें अब कोर्स को अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। नाउ देयर आर आइडियाज कि आप जो है थ्योरेटिकल पार्ट ऑनलाइन कर दें, और जो आपको लगता है कि जिन जिन चीज़ों की एक्रीडेशन चाहिए होती है, सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, तो आप उसका स्किल चेक करने के लिए एक बंदे को एक टाइम बुला लें अपनी ऑफिस में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और सारे एसओपीज फॉलो होते रहें।
आप उनको समझते हैं उन्होंने पास किया, आप उनको वो सर्टिफिकेट दे दें। तो इस तरह आपने कोर्स को, करिकुलम को अलग अंदाज के अंदर जो है वो शुरू कर दिया। और एनजीओज, आप जैसे एनजीओज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गई, जितनी भी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, जितनी काउंसिल्स हैं, नर्सिंग काउंसिल, इंजीनियरिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, इन बॉडीज को साथ बैठना चाहिए और ऑनलाइन क्लासेस की एक्सेशन के लिए भी जो है सोचना चाहिए कि हाँ, क्योंकि जिस तरह आप देखें BLS CPR के कोर्सेज होते हैं, LKIB is giving a CPR training to the TAFE students. We can think about it. How can we give this training live on a Zoom or any other forum? How can we take test? हम किस तरह उनके टेस्ट ले सकते हैं? LMS का मॉडल है, लर्निंग मॉडल, LMS एक सिस्टम है, CMS एक सिस्टम है, हमारे पास Moodle नाम का एक सिस्टम है जिसके ऊपर हम टेस्ट को अपलोड कर सकते हैं, MCQs अपलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट उनका आंसर दे, उसके अगेंस्ट में उनके क्विजेस चेक होंगे। तो ये तमाम चीज़ें एग्जामिनेशन हो सकती हैं हमारी। और जहाँ हमारी स्किल्स की बात होती है, यस आई कैन अंडरस्टैंड कि स्किल इज़ अ पार्ट विच इज़ मैंडेटरी, लेकिन US के अंदर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, रेड क्रॉस, ये जो है वो एक कट ऑफ लगाते हैं कि इतना आप अगर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे और स्किल टेस्ट नहीं देंगे तो यू आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड द CPR, बट स्टिल दे हैव अ सर्टिफिकेशन। उनके कोर्स की ड्यूरेशन कम हो जाती है, उनकी फीस कम हो जाती है। नंबर 2 बेनिफिट इज दैट कि जहां हम इतनी कॉस्ट के साथ उन इलाकों में नहीं पहुंच सकते थे जिनको इनकी शदीद जरूरत है, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, नॉर्दर्न एरियाज, वहां हम टेक्नोलॉजी की मदद से ये ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उन गरीब इलाकों में भी अवेयरनेस फैला सकते हैं। अब हमारे पास ये चांस है कि हम उनको ये मदद दें, हम ग्रांट्स लें बड़े NGO से, USAID जितने भी हैं, हम सब मिलकर ऐसा कोलैबोरेटिव एक प्लान बनाएं और उनको प्रपोज करें कि देखें अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम उन इलाकों में ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम वाइडर स्कोप के ऊपर काम कर सकते हैं मजीद। तो हमें वो ग्रांट्स को सही मानों में यूटिलाइज करके उन इलाकों में अप्रोच करना चाहिए जहाँ पे फिजिकल जो है जाना इतना मायने नहीं रखता है। तो दैट इज my points on what you asked. Thank you so much. Rahim said very rightly. Rahim said very rightly that this is a time when we need to sit down and collaborate. Okay, how best we can work together as big institutions. Okay, we make sure that our community is served, our people are served. Now कि हम ये कहें कि everything is locked down. Everything is not locked down. Things are still open. Let's keep our minds open. Everything is still open. So I think so we need to work together to see the innovative ideas, how we can work together to benefit our community. Thank you so much, Samina Vartiji and Rahim Anwar for your time. And this was a very interesting session. I enjoyed a lot. बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली. So thank you so much, and we hope कि हम आपसे in touch रहेंगे, and we'll have more such sessions for our students in the future. Thank you so much. Thank you so much, Zainab. Thank you. Allah Hafiz.